नमस्कार दोस्तों। अ, आप सभी का स्वागत है आज लीगल मेट्रोलॉजी के सेशन में। अगर हमारे साथ हमारे मेन पैनलिस्ट, हमारे माननीय गेस्ट श्री आशुतोष अग्रवाल जी, जो डायरेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी हैं भारतीय सरकार में, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में, वो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आज का जो सेशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। आशुतोष सर ने गाइड किया था कि पहले वो एक प्रेजेंटेशन रन करना चाहेंगे जिसमें वो बताना चाहेंगे कि जो लीगल मेट्रोलॉजी है या ओएमएल सर्टिफिकेशन है वो किस तरीके से आपको यूज करना है इंडस्ट्री में, उसके प्लस क्या है, उसके माइनसेस क्या है, आप करते हैं तो क्या बेनिफिट, आप नहीं करते तो क्या उसका नुकसान हो सकता है, उसके बारे में सर आज हमें ज्ञान देंगे। आज उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है इसके लिए। उसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो पुनीत जी, रजत जी हैं जो आपके क्वेश्चंस को इकट्ठा करेंगे और सर से पूछेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं संध्या रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक बार डायरेक्ट सेलिंग टुडे का थोड़ा सा ब्रीफ भेज दें ताकि उसके बाद हम आशुतोष सर को ये प्लेटफॉर्म दे सकें इस प्रेजेंटेशन, इस इवेंट को स्टार्ट करने के लिए। संध्या, ओवर टू यू। दीप, आप प्रेजेंटेशन रन कर दीजिए डीएसटी की। थैंक यू संध्या। अब मैं आप सभी के सामने आशुतोष सर को इनवाइट करना चाहूंगा। दीपेंद्र, आप आशुतोष सर को अनम्यूट कर सकते हैं। No, I can. नमस्कार सर। Namaskar. Thank you very much. Thank you for giving me this opportunity to discuss and to have the problems, if any, we are facing in direct selling. I'd like to have a small first video, if possible. Yeah. So can we make you the host? You can run it now. Okay, thank you, sir. Sure. Several ancient scriptures of Vedic period mention weights and measures. We have recorded history of measurement system in Indus Valley civilization with surviving samples.
Uniform units of length were used in the planning of several ancient sites. Later, metrology flourished during Maurya and Mughal empires with the development of standard units for length, weight, and volume. Metrology took a definite shape during colonial period, but independent Bharat adopted the international metering system in 1956. Metrology is contributing significantly in promotion of trade and exports by quality and quantity assurance in global markets. By adopting international standards, legal metrology is promoting trade and export of weighing and measuring instruments worldwide. A robust legal metrology framework ensures public guarantee of precision, security, and accuracy in various types of weighments and measurements. Mandatory declarations on packaged commodities have ensured safety of general consumers. A network of state-of-art regional reference standard laboratories provide technical support to legal metrology by verification, testing, and calibration of weighing and measuring instruments. The Indian Institute of Legal Metrology at Ranchi imparts professional training to national and international participants from neighboring and developing countries in legal metrology. Much to our pride, Bharat is now issuing authority to the International Organization of Legal Metrology Certification System, in which measuring instruments are assessed and verified in an authorized laboratory. Recognition by OIML is a milestone global achievement testifying technical progress of Bharat. Legal metrology has become one of the torchbearers in Bharat, paving way to make it a $5 trillion economy by 2030. Thank you. Thank you very much. It was a brief just information about the legal metrology, what we are doing and where we are. I think my slides are shared. Yes, sir. Okay, so as we have seen, the legal metrology is not a new subject. If we see, its traces are available in the Indus Valley civilization, and then it is now till today as we have the Legal Metrology Act. The purpose of this legal metrology is to ensure the correct quantity. The quantity which is delivered to a consumer is correct, and it basically helps in building a confidence in between trade, industry, and consumer. It is applicable to all type of weighing and measuring instruments, which whether they are used in the transaction of gold or used at the railway bridges for transaction of the goods. This legal metrology was established and enforced for standards of weights and measures to regulate trade and commerce in weights and measures and other goods which are sold and distributed by weight, measure, or number. So the transaction generally takes place either in terms of weight or measure or in number. For example, the quantity which we are selling may be 1 kg, 1000 kg, 1 metric ton, like that. Or it will be in gallons. Gallon is not a unit which is used in India. We only use the SI system of unit. So it may be, let's say, 1 metric liter or 1000 liter, 1 lakh liter, like that. So this volume and the number, the quantity which can be delivered or transacted may be in terms of number. As we have seen, the legal metrology is from Indus Valley civilization, then Maurya, then Mughals, then Britishers, and now after the freedom, we have our constitutional provisions. Under this entry list, we have the establishment of standards of weights and measures. तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि जो लीगल मेट्रोलॉजी है, इसकी जो ट्रेसेस है, हम लोग यदि इंडस वैली से स्टार्ट करें तो चाणक्य के टाइम में, मुगल शासन में, ब्रिटिशर्स के टाइम में, एंड इवन राइट नाउ वी आर यूजिंग मेनी टाइम्स फुट पाउंड और सेकंड यूनिट्स. फुट पाउंड इज वो हम लोग कहते हैं कि इतने पाउंड का बच्चा पैदा हुआ है. तो दैट इज बेसिकली द सिस्टम व्हिच वाज adopted during the British call and now British period, and now we have this Constitution of India. Under this Constitution of India, we have the provisions under the Union List and the Concurrent List. Union List is the responsibility of the Union government, and the Concurrent List is the responsibility of the center and the state both. It is a joint responsibility. If we talk about the previous, before, after the freedom,
The first act was the Weights and Measures Act 1956. It was the landmark legislation which was laid down the foundation for a comprehensive legal methodology framework for ensuring fairness and transparency in transactions. Then we have the Standards of Weights and Measures Act 1976 and the Enforcement Act 1985. Now from 1st of April 2011, we have a single unified act, which is the Legal Metrology Act 2009. Under this Legal Metrology Act 2009, we have framed various rules. The first rule is the general rule. General rule speaks about how the equipments will be manufactured, verified, tested. All type of weighing and measuring instruments are covered under this general rule. The next one is the packaged commodities. With the advancement of time, we have observed that most of the commodities are now sold in the form of packaged commodities. So to regulate these packaged commodities, we have a set of rules which is called packaged commodities rules. In these rules, we decide that how the MRP will be declared, what will be the principal display panel, where the declarations will be made, how the net quantity in the prepackaged commodities will be decided or will be measured, will be ensured. Then we have the weighing and measuring instruments. And for everywhere in the world, for all type of weighing and measuring instruments, they have a provision, they have a procedure, how these weighing and measuring instruments will be approved. That is given under the model approval rules. We have the national standard rules. National standard rule specifies all type of weighing, all type of units, all type of standards which are available in our country, maybe the scientific units, maybe the legal units, or maybe the units which are used in the industries. All type of units are covered under these national standard rules. We also have a set of rules for numeration, how a numeration has to be written in India. For example, after the decimal, 2 zeros, before the decimal, either in terms of 3 zeros, as we have the international system of units, or three digits before the decimal, and then in terms of 2 digits. So this is the base which decide how the numeration will be written in our transactions, maybe a banking transaction, or maybe we are declaring on the prepackaged commodities. We have a training institute, as we have already seen in the video. There is a training institute at Ranchi which we call Indian Institute of Legal Metrology Rules, Legal Metrology Ranchi. We have also the provision of government-approved test center rules. These rules prescribe that few private parties or private persons can also be authorized, can also be approved for doing the verification of weighing and measuring instruments. In India, we have crores of weighing and measuring instruments which we are having which are in use, and the verification and stamping of these weighing and measuring instruments is a big challenge, is a big task. And we have the state government legal metrology enforcement officers who used to verify and stamp all these weighing and measuring instruments. It is very difficult, as with the time we are getting these number of equipments are regularly increasing. Even if we see, even only the petrol pumps right now, we have more than 70,000 retail outlets which are working in our country. So with the advancement of time, the number of officers could not be increased, but the number of weighing and measuring instruments are regularly increasing. How this responsibility or this burden can be shared with the private laboratories, that was the plan, that was the intent of the government to frame these government approved test center rules 2030. The state governments have also framed their own state government legal metrology enforcement rules for the purpose of enforcement of weights and measures. The most important part which we do in this legal metrology is the standardization of units of weights and measures. All these units, as India has already signed the Meter Convention in 1956, when India became the member of BIPM and member of OIML, International Organization of Legal Metrology. At that time, we signed the Metric Convention, and after signing this Metric Convention, we are bound to use the SI system of units in our country, and all our transactions are either in terms of MKS system or SI system, which is meter for length, mass it is kg, time for second, and other units. We have 7 base units which are used all over the world, and all these units, as per the Indian Legal Metrology Act, will have their units in terms of SI system of units. Only this system of units is acceptable. If anybody use a system of Tola, Masha, Ratti, etc., it is not accepted. Earlier, it was even the SAIR, or we have the other type of pond, etc. units which are not allowed to be used in our country.
Even not only the use, even their quotation is not allowed. LM Act is applicable to all type of trade and transactions and the equipments which are used in protection. Under this act, we have the provision for declarations on pre-packaged commodities. As we have already seen, most of the commodities are now in terms of packaged commodity. What will be the declarations? We have a set of rules which is packaged commodity. Verification and stamping, we have a provision of this, and general rules we have already discussed for the private parties. Approval of model rules, again we have discussed that this has a provision of all type of weighing and measuring instruments which are manufactured in India or are imported. Before manufacturing or importing, they have to be approved. Prohibition on manufacture, repair, or sale of weights and measures without license. The act also provides a provision of nominating one director for a company for violation or offenses of Legal Metrology Act. In that case, only one director of the company will be booked or compounded for the violation. If the director is not nominated under the act, then all the directors of the company will be booked and compounded accordingly. Under this act, we have the provisions for all type of weighing and measuring instruments. The act also provides that the solid commodities will be sold in kg, liquid in volume like petrol and other commodities, because there are two types of commodities, as solid or liquid, or it may be in terms of, if it is a solid, it may be in terms of number. This is a hierarchy chart. If we see the weighing and measuring instruments which are used at the traders or which are used in the market, they have a complete traceability chain from the international standard to the traders or the commercial weights. They are regularly verified as per their frequency within their tolerance limits, within their maximum permissible error every year. The act is applicable for verification of those weighing and measuring instruments which are used for protection or ट्रांजैक्शन. प्रोटेक्शन मींस एक वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है ह्यूमन के प्रोटेक्शन के लिए या किसी एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए या किसी वेजिटेशन के लिए, यानी कि जो एक वेइंग इंस्ट्रूमेंट जिससे ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है, रीडिंग ली जा रही है, लाइक पर्सन वेइंग मशीन जो कि यूज होती है प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमन के, उस मशीन का वेरीफाई और स्टैंप होना जरूरी है, मैंडेटरी है. या ऐसे वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांजैक्शन में यूज होते हैं. ट्रांजैक्शन क्या क्या हो सकता है? व्हाट वी आर डूइंग मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, परचेज, एक्सचेंज और एनी अदर पर्पज. यदि हम असेसमेंट करते हैं रॉयल्टी का, टोल या ड्यूटी का, या हम असेसमेंट करते हैं ऑफ एनी वर्क डन, वेजेस ड्यू और सर्विसेज रेंडर्ड, इन ऑल दीज केसेस वेदर इट इज ट्रांजैक्शन or protection, the weighing and measuring instrument which is used for this purpose need to be verified and stamped. Seal and stamp is again the same technical terms which we use for verification and stamping. Stamping shows that this equipment which we have stamped is correct. It basically ensures or give a guarantee to the user that this equipment cannot be tampered. We have a provision for verification. Yes, verification means we are just calibrating or making the correct weighing or measuring instrument as per the standard and making a seal over it so that it cannot be tampered. Again, we have a definition of label, because in packaged commodities, the label plays a very important role. Label may be any written, marked, stamped, printed or graphic matter affixed to or appearing upon any prepackaged commodity. Label may be a printed label on which all the declarations are given, or it is a package, it is a commodity over which it has been printed directly. So this is a way how the declarations can be made. We have also made few new amendments under the rules, which is we have introduced a new concept of unit sale price. Actually, we have deleted. There were 19 commodities which were mandatorily to be packed in the form of or in the quantities of prescribed sizes. Now we have removed that provision. The manufacturer or the importer can pack these packaged commodities as per his requirement. But as the quantity is not correct, and I should not say correct, if the quantity is not fixed, now it will be difficult, or it may be difficult for a consumer to compare the prices. Let's say in case of a commodity, if it is, let's say 100 grams, 98 grams, 94 grams to 89 grams, it will be difficult to compare the price. And for this purpose, we have introduced a concept of unit sale price. This unit sale price will be in terms of rupees per gram, or rupees per kg, or rupees per ml, or rupees per liter. Like that, we have prescribed that if the commodities are not exactly 1 liter or 1 kg, then this provision can be used.
Also, we have made a rule that declaration of month and year of manufacture only. Earlier, it was allowed that in place that for the declaration of month and year, we can declare it may be manufactured, it may be packed, or it may be imported. But now, both of these two provisions, import and pack, has been removed. Now, only we have to declare the month and year of manufacture. Electronic products, there is a provision made for electronic products for declaration of few declarations, few mandatory information through QR code. For electronic products, address of the manufacturer, packer, or importer can be given through QR code. The generic or the common name of the product can be given through the QR code. The size or the dimensions of a prepackaged commodity can be given through a QR code, and the address which is required for the consumer care details can also be given through the QR code. This is a provision which is made for the relaxation of electronic industry. Electronic industry can declare these 4 declarations either on the package itself or through the QR code. If on the package they have been declared, it is not mandatory to declare through the QR code. But if it is not declared on the package, then it has to be mentioned through the QR code. This relaxation, this liberty is given to those commodities or to those manufacturers, packers, or importers who are manufacturing, packing, or importing electronic products. Based on measures which are used in industries they are for only internal purpose, not for transaction or trade or protection. They do not require re-verification. Once at the time of sale, they needs to be verified, but after that, re-verification is not required. We have also adopted a uniform procedure throughout the country so that the double stamping can be avoided. If a weighing or measuring instrument is verified at one place, the same weighing and measuring instrument can be used at the another place. There is no need to re-verify that weighing or measuring instrument. Few of the provisions of this Legal Metrology Act were decriminalized, considering because the provisions are not like that, where we can consider there is a mens rea. There may be an error, an unintentional error, or inadvertent error, which can be decriminalized. Only now these provisions have the penalty, which is the fine. Only they have to pay the monetary fine and they can be relaxed. There's no provision of imprisonment under these 7 sections which we have decriminalized. Penalty for use of non-standard weight or measure. If somewhere it is not standard or they are using unintentionally, that is decriminalized. Manufacture, decriminalized. Making any transaction, deal, or contract, it is also decriminalized. Quoting, publishing non-standard units, decriminalized. Non-protection of documents, earlier all these provisions were criminal provisions, and in case of violation of these provisions, the person needs to go in the court, or he has to take the bail if it is not compounded. Penalty for sale or delivery of commodities by non-standard weight or measure. Penalty for rendering services by non-standard weight, measure, or number. So these 7 provisions have been decriminalized, considering the requirement of the industry. India is doing very good job. One very important thing the legal metrology is doing, we are going to, because in India we are having the servers of USA GPS satellites, and these GPS satellites, through these GPS satellites we are receiving the signals, and everywhere these signals are being disseminated, and we have Indian Standard Time in India, but that time is not generated by India itself. That is through the GPS satellite of US. Very soon we are going to implement, we are having our own Indian Standard Time very soon. We have already started its first phase through NTP. The network, the internet service providers can take this time from India, from legal metrology, and disseminate it through their networks. However, its accuracy is of the order of milliseconds. But certainly very soon we will be having, maybe within a year, India will have its own Indian Standard Time, which will be used for all strategic and non-strategic sectors. India, as we have already discussed, we are the OML member, and since 1956, India has got another very good achievement. Now, the weighing and measuring instruments for which are approved in India, if India issues an OML approval certificate, now India has become an OML approval issuing authority under the great leadership of our Prime Minister, and we can issue now these certificates which are acceptable all over the world. So this is another achievement which we have recently received from OIML. We have some advantages of having this provision of issuing OIML approval certificates. It actually reduces the cost and standardizes the whole process. It basically generates revenue for India.
We can also now impact on OML policies. Export expansion can be made for other OML member states. We can influence and we can enhance our reliability and authority. In India, we can issue this OML approval certificate with the help of the testing at one of our regional reference standard laboratory established by Union of India. There are large number of weighing and imaging instruments which covered under this legal methodology, maybe a breath analyzer, maybe a radar equipment which is used for measurement of the speed of a vehicle, petrol pump, clinical thermometer, moisture meter, BP meter. So large number of, wherever there is measuring, weighing or measuring, the legal methodology plays a very important role because most of the specifications are made under the legal methodology worldwide. And we have the international recommendations made by International Organization of Legal Methodology. If we talk about the packaged commodity, as we are all aware, the packaged commodity is a commodity which was packed when the consumer was not present. हमारे consumer की एब्सेंस में जो कमोडिटी पैक की गई है वो एक प्री पैकेज कमोडिटी है। ये जो कमोडिटी पैक की गई है, ऐसा हो सकता है कि ये पैकेट जो है वो ओपन हो या सील हो। ये ओपन भी हो सकता है, सील भी हो सकता है, ऐसे किसी भी नेचर का हो सकता है, बट इट इज ए प्री पैकेज कमोडिटी। This label we have already discussed. Section 18(1) provides that we need few declarations which have to be made on all prepackaged commodities. Maybe MRP, maybe net quantity, maybe the country of origin, etc. So these, if the prepackaged commodity does not have these declarations, it is not allowed to sell. No prepackaged commodity can be packed, manufacture, sell or import this for distribution unless it has comply the requirements of declarations. Again, the declaration or the advertisement of retail sale price. If I say that this particular commodity's retail sale price is 100 rupees, then I have to declare the net quantity. नेट क्वांटिटी का डिक्लेरेशन मैंडेटरी है जब हम किसी भी कमोडिटी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके प्राइस के साथ। तो ये दोनों के दोनों जो सेक्शन 18(1) है और 18(2) है, ये हमारे प्रोविजंस हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर। यहां पर इसके साथ 36(1) और 36(2) दिए गए हैं जो कि इसके पेनल प्रोविजंस हैं। इफ समबडी is selling, manufacturing, packing, importing, distributing, delivering, or otherwise transferring, offering, exposing, or purchasing for sale any prepackaged commodity which does not conform to the declaration of the package as provided in the act or the rules, then for the first offense the fine will be up to 25,000 rupees. For the second offense it is up to 50,000 rupees, and for the subsequent offense the fine will not be less than 50,000 but it may enhance up to 1 lakh rupees or with imprisonment up to 1 year. So this is the way how the provisions of law is made for violation of the prepackaged commodity, because it's a very important declaration part. MRP covers under this, name and address of the manufacturer cover under this, the net quantity covers under this. So all these are very important, and that's why this provision is made that you have to make it mandatory. You have to ensure that these declarations are correct and given on a prepackaged commodity which is being sold, which is for sale in the open market or for the retail market. Section 36(2) speaks about the short delivery net quantity declaration. Sorry, it is in the error in the net quantity. If it is observed that the packaged commodity is given the less quantity, then the fine will be in between 10,000 rupees to 50,000 rupees for the first offense. And in case of second and subsequent offense, the provision is for the fine from 50,000 rupees to 1 lakh rupees, or with imprisonment up to 1 year, or with both. So this is the way how the short selling is restricted, because it is very important. If the package is small or package has the less quantity of even 2 grams and lakhs of packages are produced in a day, then the delivery of the commodity or the loss to the economy will be very large. And considering that, the provision of imprisonment is made. For the declaration, we have the principal display panel. Principal display panel is the complete surface area of this complete surface area, starting from this to this. When we are calculating the surface area, it will be the complete surface area of a prepackaged commodity. The declarations have to be given grouped together and has to be given at one place. और दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि जो प्री प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह पर दे दीजिए, और जो आपकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है उसको दूसरी जगह पर
दिया जा सकता है, ये आपका जो प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल है वो प्रिस्क्राइब करता है। क्या डिक्लेरेशंस दिए जाने हैं ये मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। नेम, एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, पैकर और इंपोर्टर, कंट्री ऑफ ओरिजिन इफ इट इज इंपोर्टेड, कॉमन और जेनरिक नेम ऑफ द कमोडिटी, net quantity in terms of standard unit of weight, measure or number, MRP which is inclusive of all taxes, unit sale price, month and year of manufacture, batch before or use by date, month and year in case of commodity which may become unfit for human consumption, size, dimension of commodity, etc. if it is relevant, and consumer care number, consumer care details which includes name, address, telephone number and email ID. It has to be given on a prepackaged commodity. If we are selling the prepackaged commodity through e-commerce websites or through our own websites, then these are the declarations which need to be given: name and address of the manufacturer or importer, country of origin if it is imported, common or generic name of commodity, net quantity in the standard unit of weight, measure or number, MRP, and best before or use by date, month and year. So these are the few declarations which need to be given on all prepackaged commodities when we are selling through the website. But when the product reaches to the consumer, the declarations which are required to be given are all these 10 declarations which are required on a prepackaged commodity when it reaches to the consumer. So these are the few declarations which I wanted to discuss with you. I think that as I have been given the time of about 20 to 30 minutes, I have already taken about 30 minutes. And if now I would like to request, we can stop this presentation. My request to the organizers, kindly share this presentation to all the participants. We don't have anything which is confidential over here, number one. Secondly, kindly share me the video of this today's program so that I can upload it on our website, where we used to do all type of videos available on our website, so that the participants can get the information whenever they wish to take. Now, I would like to over to you for asking the questions. Thank you. Thank you very much. I'm now just stopping it. Thank you. I'm not taking the complete presentation. Otherwise, it will take at least 10 minutes more, 10 to 15 minutes more. Thank you. Over to you. You are mute. You are mute. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू संध्या। हम में से ज्यादातर लोग पैकेज कमोडिटी के ऊपर जब लीगल मेट्रोलॉजी समझते थे तो सिर्फ वो लेबल का प्रिंसिपल एरिया और एक लेबल का एरिया समझते थे। उसकी एक हिस्ट्री है, वो आज जानने को मिली है। अब हम अपने सेशन में कुछ लोगों ने क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ कंपनी ओनर्स हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे बीच में जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो मैं पुनीत जी और रजत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर से क्वेश्चन पूछ सकें। प्लीज। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप अगर अपने क्वेश्चंस डालना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली आप अपने चैट बॉक्स में जाके होस्ट को डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। सो पुनीत जी, पहला क्वेश्चन क्या है आशुतोष सर के लिए? Good afternoon, sir. Welcome you for this online event for legal metrology. सर, जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं उसमें जो हमें मेजरली क्वेश्चन मिलता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ट्रेनिंग में या हमारी जो मेंबर कंपनीज हैं उसमें मेन क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं प्रोडक्ट से, और ब्रांड ओनरशिप जो है वो हमारी कंपनीज की होती है। तो इस केस में जो अंडर रूल 27 जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैन्युफैक्चरर की, मार्केटिंग कंपनी की, किसकी? तो इससे अगर थोड़ी आप इंफॉर्मेशन दें। Thank you very much. It's a very important and very general thing. Number one, who is the manufacturer? Brand owner. Brand owner would be the direct selling entity. And he's the manufacturer. I'm just no. Sorry. Yes, direct selling company is the brand owner. Yes. He is the deemed manufacturer. Actually, the responsibility of the product and the compliance of law is live with the manufacturer, brand owner. तो ब्रांड ओनर को तो चाहिए ही चाहिए कि उसके पास अपना रजिस्ट्रेशन हो, अदरवाइज टुमारो व्हेन वी विल आस्क हिम ही विल से मेरे पास नहीं है। एंड आई टेल यू वन थिंग, मेरा वो प्रेजेंटेशन का पार्ट रह गया, वो आगे था। रजिस्ट्रेशन सबसे आसान काम है, ये लाइसेंस नहीं है। नंबर वन, इट इज नॉट द लाइसेंस, इट्स जस्ट रजिस्ट्रेशन। आपने करना क्या है,
nsws.gov.in, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पैकर। आपने एप्लीकेशन भर देनी है और उसमें कुछ नहीं है, केवल नाम और एड्रेस और कमोडिटीज मांगता है, कुछ नहीं मांगता है। यदि आज आप वो उसमें भरते समय सपोज आपने भरा और आपसे कहा उसने ये डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, तो यदि आप किसी कंसल्टेंट से भरवाते हैं तो हम उससे भी वही मांगेंगे, फिर वही कंसल्टेंट आपसे वही डॉक्यूमेंट मांगेगा, फिर आप उसको अटैच करवाएंगे। बात एक ही है। तो मेरी रिक्वेस्ट क्या है, कंपनी खुद रजिस्टर करे। इट इज वेरी सिंपल साइट। यदि कोई प्रॉब्लम है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल कि बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है भरने में, क्योंकि यदि प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हमें सॉल्व करनी है, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर द ऑल पर्पस। अदरवाइज ऑनलाइन होने के बाद भी यदि हम नहीं भर पा रहे हैं और हमें कंसल्टेंट ढूंढना पड़ रहा है तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो वो बेटर था कि हम पेपर देते थे, पेपर में भर के आदमी भेज देता था, हम उसका रजिस्ट्रेशन कर देते थे। ये तो सिंपल करने के लिए किया है कि ऑनलाइन हो जाए। अब क्या करना है, नाम एड्रेस भर देना है, डॉक्यूमेंट क्या देना है, एड्रेस प्रूफ देना है और सैंपल का लेबल लगाना है। अपने आप रजिस्ट्रेशन, आई टेल यू इट विल बी डन विद इन आई थिंक, मेरे को, मैं आपको सही बताऊं, 2 दिन या 3 दिन लगते हैं। हम 15 दिन बोलते हैं लेकिन 2 या 3 दिन भी ज्यादा बोल रहा हूं। जनरली 1 दिन में हो जाता है, नेक्स्ट डे उसको मिल जाता है। आज अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट डे अप्रूव हो जाता है, क्योंकि हम उसको रोकते नहीं है। हमारा पर्पस है कि मैक्सिमम लोगों को रजिस्ट्रेशन आसानी से मिल जाए, वो लोग इजीली काम को स्टार्ट कर सके। और ये रजिस्ट्रेशन भी इमीडिएटली नहीं कराना होता है, हमने 90 डेज का टाइम दिया हुआ है। आज आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 90 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं वॉल्यूशन हो गया, इवन आफ्टर यदि ज्यादा समय हो गया तब भी आप मेरे वेबसाइट पर यदि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, मैं कोई नोटिस इशू नहीं करूंगा, चुपचाप आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। पहले किया कब किया उसको पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि आज आप कंप्लाई करने जा रहे हैं, हमने नोटिस तो दिया नहीं। नोटिस दिया होता और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो मुझे कंपाउंड करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। जब हमने नोटिस नहीं दिया, आपने चुपचाप अप्लाई कर दिया और रजिस्ट्रेशन करा लिया, हमारा काम खत्म। तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ के नाम एड्रेस लिख करके रजिस्ट्रेशन करना है, मेरी रिक्वेस्ट है। बट आपको भी करना है और जो एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग कर रहा है उसको भी करना है, उसको भी समझाइए भाई तुम्हारी तो फैक्ट्री है, तुम्हारे पास कल आएंगे, आप 10 लोगों का सामान बना रहे हो तो आपके पास तो होना ही चाहिए ना रजिस्ट्रेशन, कि मेरे पास पैकिंग का रजिस्ट्रेशन है, मैं पैक कर रहा हूं, चाहे अपने लिए कर रहा हूं या दूसरे के लिए कर रहा हूं, तो उसको भी चाहिए और आपको दोनों को कराना है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत आसानी के साथ कराई जा सकती है। कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप अपने जितने भी मेंबर्स हैं, 1 लाख मेंबर हैं, तो मेरे को बताइए, मैं 1 लाख मेंबर के साथ बैठ के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार हूं। वी विल गेट इट डन, नो प्रॉब्लम। हम लोग सब बैठ जाएंगे, उनसे कहेंगे आप भी खोलिए, मैं बताता रहता हूं, आप भरते जाइए, उसमें कुछ नहीं करना है, केवल 4 चीजें पूछी जानी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट उससे क्या होगा, एक कंप्लायंस होता है लॉ का, और आपको भी अच्छा लगता है जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट डे आएगा ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है आपके बिजनेस के लिए। लेकिन सबको कराना है। थैंक यू सो मच सर। सर अभी आपने सेक्शन 36 की बात की, जिसके अंदर सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्टिंग और सभी एक्टिविटीज पे ये लीगल मेट्रोलॉजी का जो प्रोविजन है वो लागू होता है। और जिसमें फर्स्ट केस में 25,000 रुपए का फाइन है, फिर सेकंड केस में 50,000 का, फिर थर्ड केस में 1 लाख का है। यानी कि मानते हैं कि अगर कोई सिर्फ सेलिंग कर रहा है और उसका लेबल गलत निकल जाता है या लीगल मेट्रोलॉजी की वायलेशन होती है, उसको भी पेनल्टी है, और जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको भी पेनल्टी है। देखिए, जो पेनल्टी लगेगी वो बेसिकली ब्रांड ओनर को ही लगेगी, हम मैन्युफैक्चर तक नहीं जाएंगे, ब्रांड ओनर के लेवल पे ही वो कंप्लीट हो जाएगा। यदि उसके बाद वो नहीं करेगा तब जाएगा वहां पर, तो दोनों को दोनों करेंगे, अदरवाइज तो ब्रांड ओनर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिकली। अच्छा, किसी ने पूछा था वेबसाइट एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस इज NSWS, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, nsws.gov.in, सेंट्रल अप्रूवल्स, देन कंज्यूमर अफेयर्स एंड देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पैकर मैन्युफैक्चरर। इससे आसान हो ही नहीं सकता, बहुत ही आसान है। बहुत बढ़िया सर। पुनीत जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीइंग अ मार्केटिंग कंपनी, कंपनी को प्रोडक्ट लेबल्स और वेबसाइट पे जो डिक्लेरेशंस हैं उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है? बहुत बढ़िया, मेजरली कि बहुत ही उनके बढ़िया, ऊपर कोई पेनल्टी या कोई इशू ना आए। बहुत बढ़िया। मैंने जितने डिक्लेरेशन देने हैं वो सारे आपको बता दिए जी सर। जी दोनों जगह, कि जो आपने प्रोडक्ट पे देने हैं वो 10 हैं और जो ऑनलाइन वेबसाइट पे देने हैं वो 6 हैं। वो ऑलरेडी डिक्लेरेशन हमारे फिक्स हैं, किसी ने कुछ नहीं करना, वही देने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। नंबर 1 वेरी क्लियर। अब उसे देते समय 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। साइज ऑफ द लेटर एंड न्यूमेरल, वो कितना बड़ा होगा, वो आज अभी आ नहीं पाया क्योंकि रूल में हम लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है ज्यादा चीजों में डिस्टर्ब, मैंने टाइम दूसरा जगह में ले लिया। अगर वो पैकेज कम्युनिटी में आता तो आगे आ जाता। उनके साइजेस फिक्स है, उनका
एक चीज कहते हैं ऊपर नीचे चारों तरफ स्पेस छोड़ना है, वो भी फिक्स है, रूल में लिखा हुआ है, और कुछ भी ऐसा नहीं है। और सिंपल सी बात है कि आप खुद पढ़ के देखिए ना, जो डिक्लेरेशन आप पढ़ पा रहे हैं वो सामने वाला भी पढ़ पाएगा, सिंपल सी बात है। तो वो डिक्लेरेशन क्लियर होना चाहिए, लेजेबल होना चाहिए। कई बार क्या देखते हैं, व्हाइट के ऊपर व्हाइट से लिख दीजिए, अब बताइए कैसे पढ़ेगा कोई आदमी उसको? हम खुद नहीं पढ़ सकते, दूसरा के ऊपर कैसे पढ़ेगा? तो पॉइंट ये है, जो आपको पढ़ के समझ में आ रहा है वो सबकी समझ में आ रहा है, ऐसा लिखना है, लेकिन लेजिबल होना चाहिए। रूल दिया गया है साइज के लिए भी और उसके लिए भी, वो आप जब नेक्स्ट टाइम कभी डिस्कस करेंगे, कभी भी आई एम ऑलवेज अवेलेबल। जब भी आप कहेंगे हम लोग दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। और नेट क्वांटिटी कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कभी भी, कि कैसे करते हैं नेट क्वांटिटी का डिक्लेरेशन या एरर इन नेट क्वांटिटी। जी नेक्स्ट। सर इसमें कई बार होता है कि प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग होती है काफी छोटी होती है, जैसे 40 ml 30 ml की दवाइयों की शीशी आती है, वैसे ड्रॉप्स वगैरह भी आते हैं। तो अब उसमें क्या होता है, जब बॉटल पैकेजिंग छोटी है तो उसके ऊपर जो लेबल्स लगते हैं उस पे जो कंटेंट है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो उसके ऊपर अगर हम जो हमारा प्रिंसिपल डिस्प्ले एरिया है उसको भी अगर हम कवर करने की कोशिश करते हैं तो वो कई बार जो फॉन्ट साइज है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो उसको कंप्लायंस हम कैसे पूरी कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। इसके लिए दो तीन तरीके हैं। नंबर वन, जब साइज छोटा है तो साइज ऑफ द लेटर और न्यूमेरल भी छोटे हैं, नंबर वन। उसके लिए आप कभी नहीं कह सकते जब साइज ही छोटा है तो उसके ऊपर बड़े न्यूमेरल कैसे आएंगे, नंबर वन। सेकेंडली, यदि आपको लगता है यार ये बहुत छोटा साइज है, तो आपने देखा होगा पहले क्या चलता था, उसके साथ टैग लगे होते थे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के वो लोग एक्स्ट्रा टैग लगा देते हैं प्रोडक्ट्स में, जहां पर साइड डिक्लेरेशन साथ में होती है। हम उसका पैकेज बड़ा कर सकते हैं, नंबर वन, छोटा सा, कि टैग टैग लगा कर, पैकेट बड़ा नहीं करना चाहिए मुझे मुझे कहना चाहिए टैग लगा सकते हैं, जिसमें कि आप सारे डिक्लेरेशन उससे अटैच कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि टैग रिमूव ना हो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। बट जनरली लोग छोटे प्रोडक्ट्स में, मुझे जनरली लगता नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोडक्ट जो 10 ml तक हैं या 10 ग्राम तक हैं, उनको तो एग्जम्प्ट ही किया हुआ है सारे डिक्लेरेशन से, उनको तो कुछ ही डिक्लेरेशन देने हैं। उसके बाद जब आप 20 ml पे जाएंगे, 20 ग्राम पे जाएंगे, तो उसका साइज उतना हो जाता है जितना न्यूमेरल का साइज है वो आ जाता है। इवन आफ्टर लगता है तो आप उस पर टैग लगा के दे सकते हैं। ओके, तो अगर उसमें कोई कंपनी जैसे बॉटल के साथ एक आउटर कवर लगा के और उसमें एक लीफलेट डाल दे तो क्या वो अलाउड होगा? बहुत बढ़िया। लीफलेट नहीं, जो उसके ऊपर कवर लगाया है उसी पे लगा दे, उसी पे डेकोरेशन दे दे, क्योंकि लीफलेट तो अंदर से निकालना पड़ेगा खोल के। हाँ जी। या तो आप बॉटल के साथ ही आप यहीं पे टैग लगा दीजिए उसके साथ, ताकि वो उसके साथ लगा हुआ है और जब अलग नहीं जाएगा, या जब आपने इसको कवर किया उस कवर पे डाल दीजिए ओके, डिक्लेरेशन। तो क्या हमें लेबल प्लस कवर दोनों पे करना होगा या सिर्फ आउटर कवर पे कर दिया, लेबल पे ना भी पूरा कंप्लायंस है तो? आउटर, फिर उसका आउटर, आपका जो आउटर कवर है वही एक आपका लेबल बन जाएगा ना। ओके बिकॉज अब आप उसको सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट उसके अंदर ही है, वो तो सेल एक सिंगल हो जाए, बार बार देने की जरूरत नहीं है। जी सर। और बताइए, बट कंज्यूमर इज बेसिकली द पर्पस इज, बिकॉज वी आर ऑल कंज्यूमर्स, कंज्यूमर यस को नजर आना चाहिए हम क्या बेच रहे हैं। जी, उनके सर एक पास क्वेश्चन है पूरी थोड़ा सा, इंफॉर्मेशन। सर एक जी क्वेश्चन है सर। थोड़ा सा अजीब सा है, कि एक हमारे मेंबर कंपनी कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि 12 प्रोडक्ट का कार्टन है, अब उसमें 12 प्रोडक्ट है, एक आउटर कार्टन, तो आउटर कार्टन की भी कोई लीगल मेट्रोलॉजी होती है सर, कि सिर्फ बहुत जो प्रोडक्ट का बढ़िया, कार्टन है उसी को देखना है? वेरी गुड। हम रिटेल में बेच क्या रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपने कहा 12, मान लीजिए अब हम बात करते हैं बिस्किट। आपने देखा होगा जो बिस्किट आता है वो 12 पैकेट का एक बड़ा पैकेट आता है, लेकिन वो जनरली पॉलिथीन ही होती है, उसको एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। अब दैट इज नॉट फॉर रिटेल सेल ना, रिटेल सेल तो एक ही बिस्किट का हो रहा है, तो डिक्लेरेशन हैज टू बी गिवन ऑन द रिटेल पैक। लेकिन अभी आप कहते हैं मैं रिटेल में ही पूरा पैकेट बेचूंगा और बिल काट रहे हैं पूरे पैकेट का एक एज ए रिटेलर, तो वहां पर भी डिक्लेरेशन होने चाहिए। वरना हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैं जब जाऊंगा मैं कहूंगा भैया ये पूरा पैकेट मुझे दे दो और मुझे बिल भी बना दो, और वो मुझे पूरा बिल बना के देता है जिसपे कि रिटेल में है नहीं वो, तो वो उसे सेल नहीं करना चाहिए। वहां हम क्या करते हैं, लिख देते हैं होलसेल पैक। होलसेल पैक का कॉन्सेप्ट है कि होलसेल पैक में उसमें सारे डिक्लेरेशन नहीं देने, 2 या 3 डिक्लेरेशन देने होते हैं, वो उसके ऊपर लिख करके हम छोड़ देते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा काम करता है कि एक कोट, पैंट शर्ट का कपड़ा, एक टाई और एक कोट का कपड़ा देता है, वो 3 चीजें प्रोडक्ट हैं, वो उसको इकट्ठा एक बॉक्स में डालता है और कस्टमर को मान लीजिए 4,000 5,000 रुपए का देता है, तो उस केस में उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर 5,000 देके 5,000 का सामान खरीद रहा है, क्योंकि फिर वो रिटेल सेल हो गई। यस, ये मतलब, ओके रिटेल, ओके, मतलब होलसेल में काउंट नहीं है, तो रिटेल सेल में होगा तो उसके बाहर यस, आउटर आने चाहिए, पूरे कॉम्बो का डिटेल आना चाहिए उसके अंदर। यस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मेंबर कंपनीज हैं कुछ जो अपैरल सेल करती हैं, जैसे टी शर्ट्स हो गए, शर्ट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, तो उसमें जो उनके जो लेबल कंप्लायंसेस हैं वो कैसे होंगे? उसमें जो जी उसमें क्या क्या डिक्लेरेशंस मैंडेटरी होंगे?
सॉरी, मेरे को लगता है कुछ बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम सॉरी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया मेरा, कोई एकदम इशू नहीं बीच सर। में मुझे स्टॉप हो गया था, सॉरी। सर मैं रिपीट कर जी देता हूँ क्वेश्चन। जी जी क्वेश्चन प्लीज। बेसिकली ये है, कुछ कंपनीज हैं जो अपैरल सेल करती हैं, जिसमें टी शर्ट्स हो गई, शर्ट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, तो उनकी जो लेवल कंप्लायंसेस हैं वो कैसे पूरी होंगी, उसमें क्या क्या मैंडेटरी डिक्लेरेशंस रिक्वायर्ड रहेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। देखिए इसमें क्या है, यदि हमारा इफ इट इज ए पैकेज कमोडिटी, तो अगेन वही सारी की सारी डिक्लेरेशन देनी है, 10 की 10 जो मैंने दी है। इफ इट इज नॉट ए पैकेज कमोडिटी, अब सपोज करिए मैं दुकान पे गया और कोई आपका लूज में आपका गारमेंट है या आपका कोई क्लॉथ है, तो जो कि लूज में बेच रहे हैं, ओपन ओपन में बेच रहे हैं, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी रूल में ही प्रिस्क्राइब किया हुआ है वेरी फ्यू डिक्लेरेशंस। इसका साइज क्या है, एमआरपी क्या है, बनाया किसने है, और इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। 3 या 4 डिक्लेरेशन हम उसमें मांगते हैं, सारी डिक्लेरेशन नहीं मांगते। जैसे आपने देखा होगा जो आपका हॉजरी आइटम्स है वो ऐसे ही बिकते हैं, तो उस हॉजरी आइटम पे पैकेज कमोडिटी की डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। जो ओपन में बेच रहा है उस पर फ्यू डिक्लेरेशन ही देनी होती है। लेकिन अब साहब एक वीआईपी का आप देख रहे हैं, वीआईपी का अंडर बनियान है या अंडरवियर अंडरगारमेंट्स है, तो वो एक पैकेट में आ रहा है, वहां डिक्लेरेशन देने में क्या दिक्कत है, वहां तो सारा डिक्लेरेशन दिया जा सकता है और देना ही चाहिए। तो उसमें क्या डिक्लेरेशन मैंडेटरी रहेगा वो? All अगर pre-packaged commodity, all declarations which are required for a तो pre-package. उसमें भी सेम पैक, व्हेन, मतलब कब पैक हुआ है, क्या उसका साइज है, वो सारी इंफॉर्मेशन पूरी जी हमें मेंशन करनी होगी। जी जी। ओके। सर एक्चुअली कपड़े से ज्यादा क्वेश्चन ना ये घड़ी और सोने में आता है। यानी घड़ी वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि यार देखो हम तो पैकिंग में देते नहीं, हम तो ओपन घड़ी बेचते हैं। वेरी अब वेरी। हमने तो, क्योंकि घड़ी में क्या है कि आउटर कार्टन पे तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ एक घड़ी पकड़ा देते हैं वो तो सेल करते समय। वो जो वॉच मेकर्स हैं, ज्वेलरी मेकर्स हैं, वो इस मामले में बहुत क्वेश्चन उठाते हैं कि आउटर पैकिंग का हमारे पे कोई लीगल मेट्रोलॉजी लगता नहीं, क्योंकि हमने तो खुले में सामान बेचा है। तो जैसे खुले में किसी ने शर्ट पीस काट के दे दिया तो उस पर कहते हैं कि पैकेजिंग नहीं लगती। अब ये घड़ी वालों को कैसे समझाएंगे सर, इन पे भी ये रूल लगता है? बहुत अच्छी बात आपने बिल्कुल सही बोला। अब किसी ने शर्ट का कपड़ा काट के, पहले हमारे टाइम में तो आज से 50 साल पहले यही होता था, जी शर्ट का कपड़ा खरीद के लाते थे और उसको सिलवाते थे। अब तो खैर वो सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। आप लोगों ने जो आपकी इंडस्ट्री जो उसने इसको कपड़ा खरीदने का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया ना, अब तो कोई खरीदता ही नहीं है कपड़ा। मुझे नहीं लगता, मैंने तो लगभग 30 साल से तो नहीं खरीदा होगा, सिलवाने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वहां तो उसमें लगेगा नहीं। लेकिन जो आपने कहा ना, ये घड़ी घड़ी हो गई या आपका इस टाइप के बहुत सारे आइटम्स, ज्वेलरी आपने बोला, ज्वेलरी ज्वेलरी अलग है, उसको बाद में लेते हैं, एक आइटम लेते हैं घड़ी। देखिए जो घड़ी है, आप उसको केवल शो पीस में, जो शोकेस में रखते हैं वो दिखाते हैं, निकाल के जो बेचते हैं वो अंदर से ही बेचते हैं, जो पैकेट में होती है, जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि उसके ऊपर, और सी मैं समझता हूं उसके ऊपर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है एमआरपी की, नेट क्वांटिटी की, वो उसके ऊपर, नेट क्वांटिटी तो नहीं मैं इतना कहूंगा, लेकिन जो एमआरपी है या कब बनाई गई है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन उसके ऊपर होनी चाहिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन। बिकॉज सपोज समबडी इज वेरी पर्टिकुलर, हम तो, हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं वो लोग कहते हैं साहब कंट्री ऑफ ओरिजिन का बड़ा प्रॉब्लम लोग करते हैं कि साहब ये तो पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, इंडिया में बिक रहा है। लॉट ऑफ कंप्लेंट्स वी यूज्ड टू गेट रेगुलरली। तो आपकी इंडस्ट्री की यदि 100 प्रॉब्लम है, तो मेरे पास मतलब इंडस्ट्री की 1 लाख प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडस्ट्री 1 लाख ही है तो 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन कंज्यूमर 140 करोड़ है, उनकी 140 करोड़ प्रॉब्लम्स है। तो दोनों साइड से जब देखें तो इस तरीके से करना है कि विन विन सिचुएशन हो, दोनों बैलेंस्ड वे में चले, और इस तरीके से रहे कि कंज्यूमर भी अपने आप को ये या फील ना करे कि मैं कहीं चीट हो रहा हूं, और एट द सेम टाइम इंडस्ट्री को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके ऊपर ओवर रेगुलेशन हो रहा है। वो अपना काम कर रहे हैं, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहे हैं, और उसके बाद उनको भी इजी है बिजनेस करना, इज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो घड़ी है, ये एक बेसिकली, ये बहुत सारे कोर्ट केसेस वगैरह भी हुए जिसमें डिसाइड हुआ कि यार ये जो ओपन में, इवन जो शर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, शर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पैकेज कमोडिटी माना, ये पैकेज कमोडिटी है, बात खत्म। इसके अलावा जैसे घड़ी है और बहुत सारे केसेस है, जनरली इसमें हम लोग कहते हैं, लेकिन अंदर से वो पैकेट में ही निकाल के देता है, बाहर जो शोकेस में लगी होती है, शोकेस में वो तो देता नहीं है। ज्वेलरी, यदि ज्वेलरी आप ओपन में बेच रहे हैं तो उसको ऊपर तो कोई पैकेज कमोडिटी बोलता नहीं है। आप गए, आपने सेट निकलवाया, चेक किया, और पैकेट उसको, जो आपका बहुत ही प्यारा सा कवर होता है, उसका बॉक्स में सील करके ले आते हैं, वहां तो पैकेज कमोडिटी लगता नहीं है, वो बिल आपको दे देता है। बट यदि आप एक, मान लीजिए गोल्ड का या सिल्वर का कॉइन है, या सिल्वर का एक आपका वो होता है ना जो रेक्टेंगुलर आता है पीस, यदि उसको बेच रहे हैं और वहां पर आपने सारे डिक्लेरेशन दिए हुए हैं, तो फिर तो ये पैकेज कमोडिटी ही हुआ ना, ये ओपन में कहां हुआ, ये तो पैकेज कमोडिटी है। इसलिए हमारे को बिल्कुल क्लियर है कि ये पैकेज कमोडिटी, बिकॉज पैकेज में बेच रहे हैं, और ये हमारा ओपन में गोल्ड को चेक करके, देख करके वो लोग लेके जा रहे हैं। जहां तक बात है उसकी एक्यूरेसी की या उसकी क्वालिटी की, वो अलग इश्यू है, वो वहां पर मेंशन करते हैं कितने कैरेट का है, या उसके ऊपर बीआईएस का कितना हॉलमार्किंग लगा है, वो सारा का सारा वहां पर देते हैं। लाइक गोल्ड बिस्किट, बिल्कुल ठीक कहा आपने,
लेकिन गोल्ड बिस्किट कौन थैंक खाता यू है? सो मच सर। आई थिंक आपका पॉइंट बड़ा अच्छा था। पुनीत, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है? हाँ जी सर, दो क्वेश्चन हैं। पहला एक क्वेश्चन है सर, लेबल पे जो डिक्लेरेशंस हैं एज पर लीगल मेट्रोलॉजी, एज पर एफएसएसएआई या कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स या आयुष डिपार्टमेंट के, इसमें क्या 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 डिफरेंसेस मेन रहते हैं? क्योंकि कई बार हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि जब हम मार्केटिंग कंपनी को वेरी गुड, कंसल्ट वेरी करते हैं तो वेरी हमारे गुड। पास रिप्लाई में आता है कि सर मैन्युफैक्चरर्स हमें बोल रहे हैं कि हमें ये डिपार्टमेंट ये अलाउ नहीं करता ये मेंशन करना, तो उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? बताएं। जहां तक लीगल मेट्रोलॉजी और एफएसएसआई का सवाल है, हमारे रूल्स ऑलरेडी हार्मोनाइज्ड है। कुछ डिक्लेरेशन उन्होंने देने हैं उनके हिसाब से, और कुछ डिक्लेरेशन हमने देने हैं हमारे हिसाब से। हमारे रूल में भी लिखा है और एफएसएसआई के रूल में भी लिखा है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डिस्प्यूट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रही बात ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स की, हमने अपने रूल में ऑलरेडी लिखा हुआ है इसके लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल लगेंगे, इसके लिए सीड रूल लगेगा, सीड्स का जो अपना रूल है वो लगेगा, इसके लिए एफएसएसआई का रूल लगेगा। हमारे रूल्स में बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। इवन आफ्टर आपको लगता है, एक बार मेरा रूल देख लीजिए, फिर मुझे बताइए कि कहां पर डाउट है। जहां नहीं लिखा वहां हमारा लगेगा, जहां लिखा हुआ है कि इसके लिए एफएसएसआई लगेगा तो उनका लगेगा, बात खत्म, हमारा लगेगा ही नहीं। ओके। फॉर एग्जाम्पल मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, हम बात करते हैं अपने रूल की, या एक्सपायरी, ये हमारे रूल में तब आएगा जब उनके रूल में नहीं है। उनके रूल में ऑलरेडी प्रोविजन है और हमने लिख रखा है वो एफएसएसआई के हिसाब से डिसाइड होगा या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के हिसाब से डिसाइड होगा, तो उन्हीं का चलता है, हमारा नहीं चलता वहां। तो मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से चलेगा, बट एक्सपायरी जो रहेगी वो एज पर एफएसएसआई और कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स के अकॉर्डिंग मेंशन करनी पड़ेगी। जी जी, मंथ एंड ऑफ मैन्युफैक्चर भी उन्हीं के हिसाब से है, हमने वहां वो भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है दोनों जगह। ओके, ठीक है सर। सर लास्ट क्वेश्चन है जो मेरे पास, वो है कि बेसिकली लीगल मेट्रोलॉजी में जो नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अगर कोई कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप डायरेक्टर नॉमिनेशन कराएं। इसका फायदा है आप इंडस्ट्री को, इसका इंडस्ट्री को मैंडेटरी नहीं है। आप नहीं कराना चाहते तो हम कभी नहीं कहेंगे आप रजिस्ट्रेशन कराइए। इसका फायदा क्या है इंडस्ट्री को? सपोज आपने, मेरी कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, जो 10 डायरेक्टर और मेरा कोई ऑफिस होता है, देन ऑल द डायरेक्टर्स विल बी बुक्ड विद कंपनी and the compounding will be done with all the 10 directors plus company. If one director is nominated, then in case of violation, the case will be booked against that director only, number one. तो अब वही जिम्मेदार रहेगा बेचारा, बाकी लोग नौ जिम्मेदार नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूं। हाँ, यदि लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा कि केवल वही जिम्मेदार है, कहीं और कोई आदमी, उसका मैनेजर, उसका सुपरवाइजर वगैरह जिम्मेदार नहीं है, नंबर वन। तो वही जो कंपाउंडिंग होगी उस डायरेक्टर की और केवल कंपनी की होगी, सारे डायरेक्टर्स की कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो कंपाउंडिंग अमाउंट कम हो जाता है यदि आपने डायरेक्टर को नॉमिनेट करा हुआ है। यदि नहीं किया हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अप टू यू। हम इशू करते हैं नोटिस सबके लिए और उसके बाद वो सबकी कंपाउंडिंग कर सकते हैं। ओके। राहुल जी, आपका माइक बंद है। ओके, सॉरी सर, एक कॉल आ गया था। एक मेंबर्स ने एक्चुअली यहीं पे कॉल कर दिया, वो देख रहे हैं वीडियो। उन्होंने कहा कि अच्छा सर, एक चीज होती है एजुकेशन सिस्टम। नाउ एजुकेशन में किताबें होती हैं, बुक्स होता है और स्टेशनरी होती है। एक चीज आती है जिसमें सीडीज आती थी, डीवीडी आती थी। नाउ वो तो कोई पैकेज कमोडिटी नहीं है, वो तो ऑनलाइन हमने बेचा और ऑनलाइन कस्टमर को मिल गया। नाउ इफ लेट्स अज्यूम कि देयर इज अ पैकेज सीडी या कोई पैकेज बॉक्स है जिसके अंदर हम कहते हैं कुछ मटेरियल है ऑनलाइन का, एजुकेशन का। So does education will also come under legal methodology? Yes. Whenever you are selling any of the commodity, it is covered under the legal methodology. ऐसा only a product, not a service. So if it's somebody अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वो नहीं, जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ चेकअप की सर्विस है या। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने बोली। यदि कोई सर्विस दे रहा है तो सर्विस को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, मेजरमेंट यदि सर्विस का होगा तो वो कवर होगी, नहीं तो नहीं होगी। हम अभी ट्रूली बताएं तो लीगल मेट्रोलॉजी में इंडिया में हम अभी केवल प्रोडक्ट की बात करते हैं, जनरली सर्विस को काउंट अभी नहीं करते। ओके सर दो क्वेश्चन हैं। जी, दो क्वेश्चन। एक है कि कैन वी सेल द प्रोडक्ट व्हिच हैज बेस्ट बिफोर क्रॉस डेट नॉट एक्सपायरी? सी,
under the FSSAI and the Drugs Cosmetic Act, these provisions are made. तो जहां पर बेस्ट बिफोर या यूज बाय डेट लिखा है वो दोनों प्रोविजन उन्होंने अलाउ किए हुए हैं, लेकिन प्रोडक्ट का अपना मतलब है। बेस्ट बिफोर का मतलब ये है कि उससे पहले उसको खत्म कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और जिसमें लिखा है यूज बाय डेट तो उस डेट तक उसको खत्म करना ही है, उसके बाद वो नुकसान कर सकता है। तो वो आपका FSSAI से गवर्न होता है, हमसे गवर्न नहीं होता, उनके रूल आप चलना होता। दोनों उन्होंने प्रोविजन दिए, दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन है पुनीत, एक बड़ा लेट मी जस्ट, एक लेबल है, एक प्रोडक्ट है आयुष का जिसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, हमने लेबल पूरा कर दिया। अब लेकिन उसके ऊपर हमने 20 और लोगो लगा दिए। फॉर एग्जांपल हमने ISO का लगा दिया, हमने GMP का लगा दिया, WHO का लगा दिया, यानी कि अब यानी वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। सो डज लीगल मेट्रोलॉजी विल कवर ओवर सर्टिफिकेशन क्लेम? नो नो। सो वो ना आयुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो लीगल मेट्रोलॉजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर प्रोडक्ट में कुछ और ओवर लोगो लगे हुए हैं तो, हाँ ये ओवर स्टेटमेंट है तो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सही होंगे ना। ये तो चेक करने के बाद ही पता चल सकता है। आपने कहा डिक्लेरेशन दिया है, यदि कल को उसने लिखा हुआ है वहां पर कि मेरे पास ये GMP का लोगो लगा है, हमने उससे कहा भैया आपने प्रोडक्ट पे GMP लगाया, जरा दिखा दीजिए कहाँ है GMP, और वो नहीं दिखा पाता है, तो क्या करेंगे? वो तो चीटिंग हो गई ना। सर वो पूछेगा कौन? वो लीगल मेट्रोलॉजी पूछेगा या आयुष डिपार्टमेंट पूछेगा? कोई भी पूछ सकता है, आप भी पूछ सकते हैं, अच्छा ओके। कोई भी पूछ सकता है भाई। जब मैंने किसी चीज को पब्लिक डोमेन में डाला, एडवर्टाइजमेंट किया, तो फिर तो सबका राइट है ना, कोई भी पूछेगा भैया बताओ ये कहाँ है आपका। ओके ओके ठीक है सर। पुनीत प्लीज झूठ तो देना है। योर क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन था सर, कोई वो नहीं है, सेम क्वेश्चन था कि अगर हम लोगो प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन करते हैं तो क्या लीगल मेट्रोलॉजी उसको नहीं, मॉनिटर करेगा या कोई नहीं और नहीं, डिपार्टमेंट? हम बिल्कुल मॉनिटर नहीं करते, हमारा काम भी नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप गलत नहीं बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, और यदि वो गलत हुआ तो चीटिंग है, फिर तो 420 में भी केस बुक हो सकता है उसका। भाई फिर तो यदि आप कहते हैं साहब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पुलिस को दे दूंगा। सर सिर्फ एक क्वेश्चन आया है कि अगर जैसे हम अगर अंडर रूल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अंडर रूल 27, तो क्या वो मैंडेटरी रहेगा लेबल के ऊपर मेंशन करना उसका जो भी नहीं, रजिस्ट्रेशन अभी नंबर होगा? आज की डेट में नहीं है, आज की डेट में नहीं है, लेकिन लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो रजिस्ट्रेशन नंबर डलवा दीजिए सो दैट ये आ जाए। अभी आज की डेट में नहीं है, रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, नंबर नहीं मंगवाते हम लोग, डलवाते नहीं है। ओके, तो आगे आने वाले टाइम में ये मेंशन हो मैंडेटरी होगा कि लेवल पे ये मेंशन करा जाए? हो सकता है, कभी हो सकता है। Okay. I think Puneet, with this we should come to the end of the show because ऐसे क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे और हमने सर से सिर्फ 1 घंटे का टाइम लिया और आज एक्चुअली सर का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी। सर बाकी जो भी क्वेश्चंस होगा हम आपको मेल पे दे देंगे क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चंस तो रुकेंगे नहीं। आपने प्रैक्टिकल नॉलेज दी है सर, रोजमर्रा की जिंदगी में जो बिजनेस को इश्यूज आते हैं, कंज्यूमर को जो इश्यूज आते हैं उसके बारे में जो आपने लाइट शो की है, जो आपने आंसर्स दिए हैं उसके लिए हम आपका आभारी हैं सर। थैंक यू सो मच। हम आपके साथ ये वीडियो और ये प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे। I am thankful to you. This is my duty to inform the requirements of rules and the law to all. ये मेरी जिम्मेदारी है, एक्चुअल में आप मुझे हेल्प कर रहे हैं, ये मुझे अपॉर्चुनिटी देके थैंक यू वेरी मच, ये मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू सर। और मैं बाकी सब अपने जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पुनीत जी को मेल कर दीजिए, हम वो क्वेश्चंस सर से पूछ के आप सबको मेल पे रिप्लाई कर देंगे। और सर नेक्स्ट टाइम जैसे भी जब भी कोई चेंजेस आते हैं डिपार्टमेंट में हम आपको फिर तकलीफ देंगे सर इन्फॉर्मेशन के ऑलवेज लिए। मोस्ट वेलकम।